Innovation sculpt futures. Artistry meets opportunity. Hello, everyone. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is innovation and job possibilities in the field of sculpture. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Rohita Sharma, Associate Professor and HOD, School of Liberal and Creative Arts, Fine Arts, LPU, with a PhD from the prestigious Indian Institute of Technology, Roorkee, and a rich background in academia and artistic exploration. So I would like to introduce Mr. Shantanu Shastri, Senior Faculty Stonecraft, Stone Artist Park, Training Institute, a distinguished sculptor and educator, with a diverse background spanning from prestigious art institution to extensive experience in teaching. So I would like to introduce an alumni also in this webinar, Mr. Gurpreet Singh, School of Liberal and Creative Arts, Fine Arts, LPU, a talented sculptor and artist with a rich background in sculpture and proficiency in software skills like Maya and Adobe Suite. So I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Rishabh Sharma, Officer and Area Coordinator at the Department of Types, North 1, Division of Admission, LPU. Mr. Sharma plays a pivotal role in connecting the university with various institutions and organizations. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone, for any question you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. So now I hand over the things to Dr. Rohita Sharma, and it would be an absolute delight to listen from her. Over to you, ma'am. Thank you so much, Dalvinder ma'am. And it's a great honor for me that we are here for the wonderful session as today Mr. Shantanu Shastri is with us, and we are also going to discuss about the main thing which is related to the innovations and job possibilities in sculpture. That is the main thing. So welcome, Mr. Shantanu. Shantanu sir, we are just starting with the journey as you have also doing very well in your field. Just tell me about something related, how you have started your journey in this field. Uh, Thank you so much, first, ma'am, for welcoming. And it's a real honor to address such lovely people through this webinar. I'll give a short introduction about myself. I was born and brought up in Lucknow, and I did my post graduation and my graduation and my specialization in artistry from the prestigious MNC University of Baroda. And I have nearly 20 years of experience in terms of freelancer sculpting, project handling, and I've set up two art galleries. I was a coordinator and the project curator for that. And at present, I am working in Government of Gujarat as a senior faculty and a camp coordinator for the Shilput Series. So my journey of sculpture started off at a very young age. I guess it was a inclination or a division of God that He wanted me to become a sculptor. And it is through that keen interest since my childhood that I developed my passion, my hobby into my career. And it's very important for anyone to choose a career option in which he or she is fully confident. So I choose a sculptor because I felt this is the best form of art for me, and it gives me a direct inclination or a direct support to create something in the three-dimensional form or into a realm where people can directly associate. So that is what my journey was. ओके शांतनु जी, जैसे इसमें आपने बताया कि आपने स्कल्पचर को चुना, तो जी इसमें भी क्या आप बचपन से ही कुछ क्ले के साथ खेलना चाहते थे, या ये आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यू शुड गो विद द स्कल्पचर बैकग्राउंड? एक्चुअली जब बचपन में हम छोटे थे तो हमारे माय फैमिली वाज फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, तो हम जब शहर में शिफ्ट हुए, हम लखनऊ शिफ्ट हुए, तो तभी हमारे जो कनेक्शंस थे गांव से, तो गांव के तालाब की मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है कुम्हारों के लिए। तो मिट्टी से देवी देवता बनाना, क्योंकि हम एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ ज्यादा होती है, तो गणेश जी के आइडल्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स दैट वी डिड इनिशियली।
एंड हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पे आपको आइडल्स या किसी फॉर्म को बनाना ही पड़ता है। सो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारे बचपन में मिट्टी के खिलौने मिलते थे, आजकल तो खैर प्लास्टिक्स और 3D का जमाना है, लेकिन मुझे वही बात याद है कि हमारे बचपन में जो गाय और जो बैल बनते थे, उस पे व्हील्स लगे होते थे, उसको हम पकड़ के चलाते थे। सो दैट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरैक्टिव कल्चर फॉर मी। और हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरी शायद जो मेरी जमीन से कनेक्शन है और जो गांव से कनेक्शन है, उसने मुझे काफी मदद किया कि कल्चर क्या है उसको समझने में, मिट्टी समझने क्या में। है, उसके बेसिक शेप्स क्या है, वो समझने में। हम्म तभी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, जी क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पर भी मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या लेना है, किस तरह से काम करना है, क्योंकि उस समय तक शायद वो अपनी क्वालिटीज को पहचान नहीं पाते। तो जैसा अभी आपने कहा कि बचपन से ही आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं और बचपन से ही आपने चीजों को देखा समझा इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर और क्ले आल्सो। तो ये बहुत ही एक अच्छा आपका अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर किया। तो इसके बाद जैसे आपकी एजुकेशन हुई और एजुकेशन में भी आपका जैसे स्टैंडर्ड वाइज हम लोग कहते हैं कि आफ्टर 10th हुई, तो ये चीज कैसे फाइनल आपने की कि मुझे इसी स्कल्पचर में जाना है या एक आर्टिस्ट में जाना है? क्योंकि आजकल तो वैसे भी आप देखते हैं कि मेनली फॉर मेल पर जितने भी हमारे कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक रहता है कि हाँ हमें अर्निंग करना है। तो यस। कैसे आपने इसको डिसाइड किया कि मैं इसको पैशन के रूप में लेकर के चलूं? ये बिल्कुल भी आसान स्टेप नहीं था मैडम, क्योंकि मेरी फैमिली में बिल्कुल सब नहीं है, और गवर्नमेंट वाकई में अभी बिल्कुल आप भी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत में से। हैं और काफी प्रोफेशनल लोग मेरी फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड जब यस। मेरा कला का रुझान मैंने व्यक्त किया कि मैं कला में रुचि रखता हूँ और इसी में अपने आप को फ्यूचर हम्म करना चाहता हूँ, तो काफी स्ट्रगल्स थे। 10th और 12th में भी हम्म काफी स्ट्रगल था, क्योंकि मेरा ध्यान बायो के टीचर से ज्यादा बायो के डायग्राम्स में ज्यादा था। हिस्ट्री के पेपर में भी हम ऑफ कोर्स। चित्रकारी कर आते थे। तो हम्म एक तरफ से हाँ, ये जरूर हुआ कि अपने आप को आपको स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। और उस समय यस। जब हम स्टूडेंट थे, हमने अपने आप को ये बड़ा डोमिनेंटली स्टैब्लिश किया कि हम्म इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें यही करना है। तो एक हम्म आर्टिस्ट बनने के लिए, एक स्कल्पटर बनने के लिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो आपका जज्बा है वो आपके अंदर बिल्कुल। होना चाहिए। बिकॉज वंस यू स्टेप इन, एक बार अगर आप ये स्कल्पचर की फील्ड में छलांग लगा देते हैं, तो हम्म उसके आगे तो समुद्र है, और आप समुद्र के अंदर जितना जाएंगे उतना खजाना पाएंगे। और उसके हम्म बाद जब आप ऊपर आएंगे तब आपको गहराई का पता लगेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन to understand the depth of the knowledge. It is very important for one कि किसी भी फील्ड को एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि क्या हम हम्म उस फील्ड के लिए बने हैं, क्या हम उस फील्ड के बिल्कुल लिए तैयार हैं। और बिल्कुल। आर्ट फील्ड ऐसी है ना जिसमें पीछे हटने के कोई कदम नहीं है, कोई भी फील्ड ऐसी है। हम्म इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक कलाकार बन रहे हैं तो पहले आप उसकी एक एक बारीकी को जाने, एक एक चीज को समझें। आप ये समझें कि आप पेंटिंग में रुचि रखते हैं, कि स्कल्पचर में रुचि रुचि रखते हैं, कि फ्लाइट्स में रुचि रखते हैं। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। ओके। मेन मेन चीज यही है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अ, उसी फील्ड को हमें आगे लेकर के जाना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के कहने पर कोई हम स्पेशलाइजेशन या अपने करियर को चुने। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि सबसे पहले यही है कि हमारा जो इंटरेस्ट जहाँ है हम उसी चीज को देखें। मेरा जी सेकंड आपसे प्रश्न ये है कि जब आपने स्कल्पचर को चुना होगा तब हमारे पास शायद कुछ लिमिटेड सोर्सेज रहे होंगे, बट आज जबकि बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं और नई नई इनोवेशंस कर रहे हैं,
तो वहां पे आपका क्या कहना है कि किस तरह से मीन्स फ्रॉम एंशियंट कल्चर जहां हम स्कल्पचर का एक डिफरेंट रूप देखते हैं और आज प्रेजेंट टाइम में जहां हम स्कल्पचर को इंस्टॉलेशन को हम टेक्नोलॉजी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, सो व्हाट इज योर सजेशन और क्या आपके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि यस वी आर आल्सो डूइंग वर्क विद द टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर आल्सो, so what are the innovations and trends in present time? Let me start off with the very basic question जो मैं अपने बच्चों को और खासकर अपने लेक्चर्स में ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड बात करता हूँ कि Mm-hmm. हमारे टाइम पे देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मीडियम। हम सिर्फ Okay. कुछ मीडियम्स Yes. को ही जानते, जैसे वुड, बिल्कुल क्ले, पीओपी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे। ठीक है, हमारे जी। अगर क्लासिकल आर्ट से भी बात करें तो क्लासिकल आर्ट में भी ब्रॉन्ज आप देखेंगे, मार्बल देखेंगे या वुड देखेंगे, मार्बल ब्रोंज। रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट्स थे जो नेचुरली अवेलेबल थे। बट अभी क्या हुआ है विद द इनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजीज आई हैं, उससे मटेरियल रिस्ट्रिक्ट ना होके मीडियम्स की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। 21st और 22nd सेंचुरी में हमारे पास कुछ ऐसे मीडियम्स आ गए हैं जो स्कल्पचर के नए मटेरियल बन गए। अब मैं यहाँ पे मटेरियल और मीडियम में डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ। मीडियम जो है, मीडियम आपका एक तौर तरीका जो आज तक आप देखते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजी के साथ मटेरियल आया, आर्टिस्टों ने अपने आप को उसके अंदर ढाला। आर्टिस्ट ने, स्कल्पटर्स ने, मैं यहाँ पे वर्ड आर्टिस्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसमें पेंटर्स भी आ गए, फोटोग्राफर्स भी आ गए, सारे विजुअल आर्ट के सभी काम। तो आर्टिस्टों ने क्या किया है, जब भी इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ है या विद मॉडर्नाइजेशन कुछ नई चीजें आई हैं, आर्टिस्ट ने हमेशा उसको अडेप्ट, हमेशा आर्टिस्ट के सामने, जैसे अगर आपको याद होगा जब कैमरा 19th सेंचुरी में आया था और रियलिज्म का एक फेज था, तो बहुत बड़ी एक बात होती थी कि अब फोटोग्राफी से ज्यादा रियलिस्टिक आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो उस समय आर्टिस्ट की जो जी उसी समय आर्टिस्ट ने रोमांटिसिज्म, फैविज्म, दादाइज्म, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स को लाए जिसमें उन्होंने रियलिज्म की एक तरीके से जो नीड, इंडस्ट्रियल नीड थी, उसको हिला के अपनी एक रचना बनाई। ठीक है, बिल्कुल, तो जो आज के जमाने में भी यही हो रहा है। आज के जमाने में भी यही हो रहा है। आप देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे कंप्यूटर इंटीग्रेशन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मटेरियल इंटीग्रेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आर्टिस्ट अपनी सोच को बेहतर बना के, अपनी सोच को और क्रिएटिव बना के उस इंडस्ट्रियल मटेरियल को एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में लेके आ। आप देखिए जिस तरीके से एपॉक्सीज, जिस तरीके से रेजिन्स, जिस तरीके से हाइड्रोलिक्स, जिस तरीके से न्यूमैटिक्स, किस तरीके से स्कल्पचर और पेंटिंग्स और म्यूजिक आने लगा स्कल्पचर में वीडियोस आने लगे, लाइव इंस्टॉलेशन होने लगे। तो एक तरीके से जो हमारी स्कल्पचर की परिभाषा थी एक टाइम पे कि स्कल्पचर सिर्फ इतने में निर्धारित है, वो अचानक इतने ना जाने कितने सैकड़ों ब्लॉक्स बन गए और कलाकार ने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उन ब्लॉक्स को चूज करना है। बिल्कुल। एक और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले कलाकारों के अंदर स्किल जो है रिगरस एकेडमिक प्रैक्टिस से बनती थी, जिसमें आप और मैं उसको भली बात ही समझते हैं कि हम डेली इतने स्केचेस कर रहे हैं, लाइफ स्टडी कर रहे हैं, रियलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने स्किल को एक पैरेलल चांस देके जो थोड़े सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड आर्टिस्ट थे जिनके पास सोच अच्छी, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मैंने बहुत सारे टॉक्स में सुना है कि जो लोग स्किल्ड नहीं होते वो आज हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, आर्टिस्ट के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि आर्टिस्ट का स्किल होना ही जरूरी है तब वो आर्ट कर सकते। आर्टिस्ट का क्रिएटिव होना जरूरी है तब वो एक आर्ट कर सकते। बिल्कुल। सो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को कहाँ पे अडेप्ट करते हैं
बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हम्म, नहीं, आपने ये बहुत अच्छे पॉइंट को आपने रेज किया है, और ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्योंकि हम पहले जब हमारा एकेडमिक टाइम होता था, और मुझे याद आ रहा है कि हम जब छोटे थे तब एक सीरियल भी आता था, नूपुर। और हैं। बिल्कुल। हेमा मालिनी जी का वो सीरियल था। और उसमें उन्होंने अपने स्किल को पाने के लिए कितना परिश्रम किया, वो हम उसमें देख सकते हैं। तो वो एक बिल्कुल। नया आपने ये कॉन्सेप्ट मुझे बताया यहाँ पर, और हमारे सारे ऑडियंस को भी, कि आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि आप एक रिगरस प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट के साथ करें, बट यस, यू आर क्रिएटिव। जो टैलेंट है उसको लेकर के आप एक सेमी स्ट्रक्चर वे में भी साथ लेकर के इनोवेशन को चल सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया आपने पॉइंट आपने बताया। एंड इट्स ट्रू आल्सो, क्योंकि आज के टाइम में हम यस। देख रहे हैं कि जितना भी, नॉट ओनली फ्रॉम द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, मैं सीएससी के बच्चों को भी देख रही हूँ, और बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को भी देख रही हूँ, जो कि हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में ही आते हैं। और थोड़ा सा हम उनको नॉलेज देते हैं, और वहीं पे उनकी क्रिएटिविटी एक नया रूप लेती है। दैट्स राइट। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर, इसमें आजकल जैसे अभी हम बात करते हैं 3D को लेकर के, या 3D मॉडलिंग को लेकर के, तो उसमें आपका हमारा क्या मतलब, किस तरह से और कितना आप बताएंगे कि कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि आज के टाइम में अभी एआई यस। का बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट है। जी। तो बेसिकली जब मैं आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है, और एज अ मॉडलर, देखिए जी। मॉडलिंग तो एक बेसिक टेक्निक है। मॉडलिंग एक बेसिक जी। फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स स्कल्पटिंग। एंड हम्म। विद दिस 3D इंटरवेंशन, आप एक चीज ये देखिए, जी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हम्म। प्रिसीजन इंडस्ट्री एंड जी। आपकी मेटल इंडस्ट्री में हम्म। स्कल्पटर्स के प्रिसीजन को और हम्म। स्कल्पटर्स की स्किल को किस तरह एक्सप्लोर किया जाए। अभी कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी डिजाइनर सॉफ्टवेयर पे कार को डिजाइन कर हम्म। सकता है, लेकिन उसके बिल्कुल एरोडायनेमिक्स और उसको चेंज करने के लिए आपको उसकी क्लेड मॉडलिंग करनी पड़ेगी, राइट। बिल्कुल। आज भी आप देखिए मैकेट, जो स्कल्पचर में एक हम्म। बहुत बेसिक शब्द है, किसी भी हम्म। आइडिया को जब हम एक फॉर्म देते हैं उसको मैकेट बोलते हैं। यहाँ पे लोग हम्म। क्या समझते हैं, मैकेट इज द फाइनल आइडिया। नो, मैकेट इज नॉट द फाइनल आइडिया। मैकेट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव इन योर ब्रेन, इट्स अ थॉट। आप उसको एक विजुअल फॉर्म दें, ठीक है। बिल्कुल। तो जो 3D मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री में चेंज आई है, आजकल 3D प्रिंटर्स आ गए हैं क्ले मॉडलिंग के। आप हम्म। देखिए उससे इंडस्ट्रीज में काफी रेवोल्यूशन भी आया है। जी। बट एक चीज ये है कि 3D या सॉफ्टवेयर या इंडस्ट्री या इनोवेशन हम्म। कभी भी तीन चीजें नहीं कर सकती जो एक स्कल्पटर्स कर सकती। जी। वो है अडेप्ट, इम्प्रोवाइज एंड कैटेगराइज। बिल्कुल। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आर्टिस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। भगवान के बाद अगर भगवान ने किसी को ये शक्ति दी है ऑब्जर्वेशन और क्रिएशन की, वो कलाकार होते हैं। हमारे पास कलाकार होते 64 हैं। कलाएं हैं। हमारे पास बिल्कुल। 64 कलाएं हैं। हर यस। कलाकार की एक अपनी परिभाषा। सो जी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आप 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप चीजें बना हम्म। सकते हैं, बट उसको हम्म। ऑब्जर्व करके, इसको मैनिपुलेट करके, उसको अडेप्ट करके उसमें इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। ये यस। सिर्फ एक कलाकार कर सकते हैं। और बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, एआई चाहे जितनी स्ट्रांग आ जाए, लेकिन वो उस फीलिंग को कभी नहीं समझ सकती कि पत्थर को प्लेन रख के जो फीलिंग आती है, और उसमें टेक्सचर दे के जो फीलिंग आती है, उसमें डेप्थ दे के जो फीलिंग आती है, हम्म। पतीना कौन सा अच्छा लगे। एक एआई हम्म। कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर पे कौन सा पतीना अच्छा। यस। इट कैन सजेस्ट। सी, एआई को भी हमने बनाया, ठीक है, हम्म। हम उसको इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत जी। अच्छी बात। बट एक आर्टिस्ट होने के नाते वो कभी भी हमारे अंदर की जो एक शब्द है, हम्म। आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट, मतलब जो हमारी कलाकार होने का जो हमें वरदान प्राप्त हुआ है, वो वरदान कभी भी एआई नहीं दे सकता। ओके। इसमें
बहुत सारी चीजें हैं कि आप मोशन पिक्चर में देखिए, एनिमेट्रॉनिक्स यूज हो रहे हैं, ब्लू डॉट्स यूज हो रहे हैं, ग्रीन कारपेट यूज हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें यूज हो रही हैं, हम्म बट स्टिल द टेक्नोलॉजी के लिए भी द पपेट हैज टू बी अ ह्यूमन बॉडी or हम्म a visual body. Some actor will act, some actor will act for the motion picture so that converted into a motion picture. मतलब हम्म उसके ऊपर जो सेंसर्स लगा के एक मोशन पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, उसमें एक्टर्स ही हैं, उसमें आर्टिस्ट ही हैं जो उसको इनैक्ट कर रहे हैं. सो आई वेरी वेल फील दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि टेक्नोलॉजी भले ही हमें ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है, बट टेक्नोलॉजी कभी हमसे हमारी जो आर्टिस्टिक कैलिबर है उसको कभी भी चैलेंज नहीं कर सकती. उसमें हम बिल्कुल आर्टिस्ट हमेशा ऊपर हैं. बिल्कुल सही। सर ये वही बात आप कह रहे हैं, जैसे पहले जब होता था कंप्यूटर, जब नया नया आया था ट्रेंड में, तो उस समय भी यही था कि अब कंप्यूटर्स आ गए हैं तो जॉब्स कम हो जाएंगी या फिर बहुत सारी चीजें बिल्कुल. बदल जाएंगी। और लेकिन वही है कि जो ह्यूमन एक माइंड है वो सबसे ऊपर है इस समय, चाहे वो आर्ट की दुनिया हो या टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, उसको चलाने वाले बिल्कुल. करने वाले हम ही लोग हैं। तो ये जो एक अभी मार्केट में भी ये एक तरह का है कि एक एआई आने से क्या एक अस्तित्व रहेगा आर्टिस्ट का या कलाकार का। तो ये बहुत अच्छा आपने आंसर सभी हमारे जो बच्चे हैं उनको आपने दिया, ताकि उनको ये पता रहे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट जो है किस तरह से दुनिया को चेंज करने की क्षमता रखता है, दैट इज द ग्रेट थिंग। सर इसी में ही मेरा जो अगला एक आपसे प्रश्न है कि बहुत से लोग, जैसे आज भी मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि हमारा जो बच्चा है वो पेंटिंग में जा रहा है या स्कल्पचर में जा रहा है या आर्टिस्ट की दुनिया में एक कदम रख रहा है, तो यस. क्या उसकी जो लाइफ है वो इतनी सिक्योर रहेगी? हालांकि हमारे पास जो है एंटरप्रेन्योर हम देखते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे पास हमारे बच्चों के ही, ये मैं आपको यहाँ स्लाइड पे भी दिखा रही हूँ, द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। और यस. वहीं पे अगर मैं और चीजें देखूं तो कंटेंट डेवलपर है या क्रिएटिव डिजाइनर है, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर वो एक तरह से अर्निंग अपनी कर रहे हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बट व्हाट आर द जॉब possibilities in this? Means when we are talking about the Uh, sculpture or any artistic field, what are yeah, the in future of the that? 20 in the present scenario, in the contemporary scenario, अगर Mm-hmm. आप जॉब पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचर, देयर इज अ लिस्ट, Mm-hmm. देयर इज अ ह्यूज लिस्ट. मैं आपको सच Mm. बताऊं, और ये Oh, ह्यूज लिस्ट great. ऐसी है, ये ह्यूज लिस्ट ऐसी है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन. ठीक है. Mm. अब अगर आप, मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये प्रूव करूंगा और आई लिस्ट आउट आल्सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. Mm-hmm. जैसे आप एक स्टूडियो आर्टिस्ट बन सकते हैं, आपने 3D मॉडलर की बात की, आपने जी। मोशन आर्टिस्ट की बात की, आपने Mm. मॉडल मेकर की बात की, आप फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, आप प्रोजेक्ट क्यूरेटर बन सकते हैं, आप Mm-hmm. फाइन आर्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप Mm. एक इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनर के जो विजुअल्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं, आप एक आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप एक Mm. मेटल फैब्रिकेटर बन सकते हैं, आप एक फर्नीचर डिजाइनर बन सकते हैं, आप एक Great. टॉय डिजाइनर बन सकते हैं, आप एक गेम डिजाइनर बन सकते हैं. आप जिस चीज को इमेजिन करें, आप एज अ स्कल्पटर, एज एन आर्टिस्ट हो सकते हैं. Mm. अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कुछ एग्जांपल्स. जैसे मैंने बात की फर्नीचर डिजाइन. ठीक Mm. है. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आर्ट कॉलेज स्टैब्लिश कर रहे थे, और जब मद्रास फाइन आर्ट्स कॉलेज और लखनऊ फाइन आर्ट्स कॉलेज और ये प्राइम इंस्टीट्यूट जब स्टैब्लिश हुए थे, तो इनमें कोर्सेज होता था फर्नीचर एंड रिपोजे के ऊपर, अगर आपको Mm. याद हो. हाँ तो जी। इसमें आज आप देखिए, एवरीथिंग इज अ ब्रांड. और आज के युग में सबसे बड़ी चीज जो बच्चों के पास है, जो हमारे पास नहीं थी, वो थी सोशल मीडिया. अगर आपके बिल्कुल। पास ताकत इस कल्चर को डिजाइन करने की, फर्नीचर को डिजाइन करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के अंडर काम करने की. आप खुद का एक ब्रांड बनाइए, जी। आप टेक्नोलॉजी को यूज करिए, Mm. आप मेटल के छोटे स्कल्पचर्स बनाइए, आप अपनी हिस्ट्री को लीजिए ना.
आप चाहे मराठा हिस्ट्री लीजिए, पंजाब हिस्ट्री लीजिए, या आप राजपूताना हिस्ट्री लीजिए, अगर आपकी 3D मॉडलिंग अच्छी है, छोटे छोटे मैथड्स बनाइए, छोटे छोटे मैथड्स को स्कल्पचर का फॉर्म दीजिए, एंड यू वोंट बिलीव, आपको खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एज अ स्कल्प्टर सिर्फ स्कल्पचर करिए। विजुअल्स, विजुअल आर्ट है, इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, और उस ब्रॉड टर्म में विजुअली यू कैन क्रिएट एनीथिंग। इफ यू क्रिएट अ मूवी एज अ डायरेक्टर, दैट्स अ विजुअल आर्ट फॉर्म, दैट्स अ विजुअल आर्ट। आप एक आर्ट पीस को क्रिएट कर रहे हैं which has motions, which has commotions, which has a dialogue। एक तरीके से आप अपनी संरचना को जो आपके दिमाग में है उसको दूसरों से इनैक्ट करा रहे हैं, जैसे हम स्कल्पचर में करते हैं। हम स्कल्पचर का जब मीडियम चूज करते हैं, मटेरियल चूज करते हैं, तो सबसे पहले तो एक हमारे दिमाग में आइडिया होता है कि हम इस आइडिया को कौन से मटेरियल में जाएंगे। तो एज ए स्कल्प्टर, एज ए स्कल्प्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें 3 बेसिक प्रश्न पूछने चाहिए खुद से। जी। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और कैसे। प्रॉब्लम क्या है आज के जमाने में, बच्चे सीधे कैसे पे चले जाते, क्यों और क्या, द एग्जिस्टेंस एंड द रीजन दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। और as a teacher, as a person who teaches visual art and art therapy, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्यों और क्या का जवाब खुद से ढूंढेंगे तो कैसे आपके लिए ऑलरेडी बहुत आसान है, आंसर आता है। बिल्कुल ठीक। सो आप जो ये प्रश्न कर रही हैं कि जॉब पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जॉब पॉसिबिलिटीज आपके चारों तरफ पड़ी हुई हैं। आप इसमें से क्या चूज करना चाहते हैं। आप कोऑर्डिनेटर बनिए। जैसे मैं मेरे स्कल्पटर रिजीम के दौरान मैंने अराउंड 20 to 30 शोज क्यूरेट किए हैं। मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कैंप्स कोऑर्डिनेट किए हैं, क्यूरेट किए हैं। तो आर्ट में अपने आप को सिर्फ एक वर्ड तक मत रिस्ट्रिक्ट करिए कि मैं स्कल्पटर हूँ। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। आप अपनी पॉसिबिलिटीज को खुद जनरेट करें। आप क्यूरेटर बनिए, कोऑर्डिनेटर बनिए, एग्जिबिटर बनिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए। और जब आप प्रोजेक्ट्स बना के गवर्नमेंट को, आजकल आप देखिए हमारे इंडिया में स्मार्ट सिटी नाम के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आर्टिस्ट पता है क्या होता है, आर्टिस्ट अपने अंदर घुट के रह जाता है, अपने ही अंतर मन में घुलता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है। अरे पैसे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको सिर्फ सही जगह पे प्रोजेक्ट्स देना है, आपको सिर्फ सही जगह पे अपने आप को एक्सप्लोर। एंड आई थिंक यही मेरा सबसे बड़ा आंसर है आप लोगों के लिए कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि स्कल्पटर और आर्टिस्ट की लिमिटेशन है। कोई लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन सिर्फ आपके दिमाग में है। आप जहां चाहें, जैसे चाहें, वैसे एक कैरियर बना सकते। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, एक एनकरेज करने के पर्सपेक्टिव को लेकर के कि बच्चों में जो एक डर है उस डर को दूर करने के लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर आल्सो डूइंग इन द सेम मैनर। और यहाँ पर हमारे साथ आज मिस्टर गुरप्रीत भी हैं, और ही इज द एलुमनाई ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे डिपार्टमेंट में ही हमारे साथ बच्चे ने प्रोग्रेस किया है, और आज मौका मिला है कि गुरप्रीत भी अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे कि अभी शांतनु जी ने बताया कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं वो भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं गुरप्रीत आपको अब इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज थोड़ा सा हमें पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आप एक स्टूडेंट के रूप में हमारे साथ रहे, वो क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, और आज के टाइम में आप किस तरह से ये जो एक एफर्ट है आपका वो आप लेकर के सामने आ रहे हैं। गुरप्रीत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम बहुत शुरू से बताऊं तो मैं पेंटिंग के लिए आया था डिपार्टमेंट में। मैं डिप्लोमा होल्डर था, पहले डिप्लोमा किया पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। तो उसके बाद इधर फाइन आर्ट्स में आया, फाइन आर्ट्स का अलग लगा,
सोचने के लिए यूनिवर्सिटी के ज्वाइन की, और बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटी से मैंने सीखी मैम। कुछ नया सीखा कि यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ अलग दिया, एक सोच डिफरेंट हम्म मिली, सिमिलरिटी सी नहीं थी पहले जैसी, अलग सा कुछ मिला। हम्म तो इसीलिए मैम ज्वाइन किया मैंने यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में मैम जी आके देखा कि टीचर्स ने बहुत साथ दिया मैम। जैसे स्कल्पचर में बहुत सारे उस टाइम टीचर ने मेरा बहुत साथ दिया। और जैसे शांतनु सर हो गए, सरोज सर हो गए, बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिन्होंने मेरे को बहुत फाइनेंशियली से लेके अपना कैरियर को बढ़ाने तक उन्होंने साथ दिया। आज भी उनसे मैं कुछ अगर मुश्किल में आता हूँ तो उनसे पूछ लेता हूँ कि सर कैसे होगा, कब होगा, हम्म कैसे होगा। वो सब मुझे हम्म बताते हैं मैम। और आजकल फील्ड में मैम काफी टाइम से जब से आया हूँ तो फील्ड में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, साथ मिल रहा है, सब अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं मैम। यही है मैम, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा था। अब तो फील्ड में काफी टाइम से, तो मैम जिंदगी में नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं गुरप्रीत, आप पास आउट कौन सी ईयर में हुए थे यहाँ से? मैम। 2020 मैम। 20। ओके, सो नाउ इट्स 24। तो यहाँ से जाने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिले? क्योंकि डेफिनेटली सोच में तो बहुत आपके चेंज आया है। जिस समय आप आए थे, आप आर्ट को क्या समझ रहे थे और किस तरह से आपको फैकल्टीज ने इनोवेशन के साथ साथ मोटिवेट आपको किया, तो वो एक आपकी पूरी जो लाइफ है उसकी जर्नी को उन्होंने चेंज किया। तो यहाँ पर अभी आप अपना जो 4 साल का इंडस्ट्री के साथ जो आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप इनकरेज करें बच्चों को। मैम जो 4 साल में इस एक्सपीरियंस किया मैम, वो था कि जब मैं कॉलेज से निकला तब बिल्कुल थोड़ा सा माइंड में ये था कि घर वालों की तरफ से प्रेशर था कि जॉब करनी है, कुछ हम्म अच्छी सी जॉब ले लो, इनकम सोर्स आएगा। पर मेरे को था कि मैम अपना कुछ करना है, अपना स्टूडियो सेटअप करना है। शुरू शुरू में हम्म बहुत मुश्किल आई मैम कि हम्म यहाँ पे कई बार पैसा इतना नहीं बच पाता था काम में। काम आए बहुत सारे, कई बार अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके काम देना पड़ा क्लाइंट्स को, बहुत सारा टेंशन सी आई। हम्म। उसके बाद तो अभी थोड़ा आपका अपना स्टूडियो है? हाँ जी मैम, मेरा अपना स्टूडियो है मैम जलंधर में। और वो भी ओके। हाँ जी, हाँ जी, अभी अपना सब कुछ रिसेंटली रजिस्टर्ड किया, सब कुछ अपना हम्म स्टेबल किया उसको। तो अभी मैम उसके थ्रू हम काम करते हैं बाहर जाके, और कुछ हम्म कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं कि कंपनीज हमें आर्ट का काम देती हैं। बिल्डर्स के साथ, बहुत सारे बिल्डर्स के साथ हम काम कर रहे हैं आजकल। और हम्म। अभी रिसेंटली हमारा भी मैम काम चल रहा है कि स्टेशन बन रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन उनका लिए काम चल रहा है मैम। जो ओके। इससे अपना जलंधर वेरी नाइस। कैंट का स्टेशन बन रहा है, या लुधियाना का रेलवे स्टेशन बन रहा है, इनके लिए हम काम कर रहे हैं मैम। तो हम्म। ऐसे गवर्नमेंट के साथ भी बहुत क्लाइंट्स जुड़े, और कुछ बिल्डर्स के साथ जुड़ा, इंटीरियर डिजाइनर के साथ जुड़ा मैम। वो अपनी पर्सनल कोशिश करके कि कुछ टीचर्स ने अच्छा मोटिवेशन दिया, कुछ मैम अपनी तरफ से, और साथ में जो मेरे प्रति जो उनको जो थ्रू थोड़े कांटेक्ट आए, और इस तरीके से हम मैम आगे बढ़ते गए। आज मैम मोस्टली लगभग देखा जाए तो मैं अपना स्टूडियो का 2 से 1.5 लाख का पर मंथली मैं अपना वो कर रहा हूँ, ओह टर्नओवर। ग्रेट। हाँ जी ओके। तो 1.5 से 2 लाख की आपकी टर्नओवर इस समय है। मीन्स जैसा कि अभी शांतनु जी ने बताया कि कमी नहीं है, हमें खुद से जॉब पर क्रिएट मंथ मैम। करनी है। तो आई थिंक अब ये आपका जो है 4 साल, 4 साल में भी मैं ये कहूंगी कि आपका स्टार्टिंग का जो फेज था दैट वाज रिलेटेड टू कोरोना पीरियड, पेंडेमिक पीरियड, बट उसके बाद भी आपने इतना जल्दी ग्रूम किया है। ये डेफिनेटली बहुत एक फख्र की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स इस लेवल पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक मोटिवेटर के रूप में सामने आ रहे हैं। और गुरप्रीत, मैंने देखा है कि आपके साथ प्रगति है और भी आपने जो है आगे जो नए एम्प्लॉयज हैं, जो नए आपके जो जूनियर्स हैं, उनको भी आप इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है दे रहे हो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक कहावत भी है कि हाँ जी मैम, कलाकार बाकी बनिए, हमारे पास मैम मिस्त्री जो नहीं। परमानेंट जॉब भी कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम। हम्म। तो मुझे लगता मैम है कुछ कि हमारे किसी पास अपने कलाकार। पर्सनल भी है। अच्छा। हाँ जी मैम, कुछ पर्सनल्स, बताएं। हमारे पर्सनल्स भी आर्टिस्ट रहते हैं जो साथ में हमारे काम करते हैं। ऐसे कुछ क्ले मॉडल्स आते हैं, या स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स को भी बुलाता हूँ मैम। बाकी हमारे हम्म पास परमानेंट जो 3 जो लेबर है हमारे पास परमानेंट रहते हैं, जो हमारा स्कल्पचर का प्रोडक्शन का काम करते हैं मैम। हमारे पास प्रोडक्शन का ज्यादा काम रहता है,
छोटे छोटे स्टैचूज हो गए, छोटी छोटी फाइबर की मूर्तियां जो हो गई, वो सब हम वो प्रोडक्शन में करते हैं मैम। उसका हमारा वो परमानेंट काम रहता है हमारे पास, उसका तो रेगुलरली रहता है। हम्म। हाँ जी मैम। तो ओके। बाकी अच्छा, गुरप्रीत, एक चीज और बताओ कि आप जैसे ये प्रोजेक्ट्स के बारे में है, डेफिनेटली आपके पास स्किल की तो अब कमी नहीं है, बट जो ये प्रोजेक्ट्स हैं आपको कैसे पता चलता है? गवर्नमेंट आपको खुद से मतलब कहीं से आपके पास वो लोग कांटेक्ट करते हैं या आप उनसे मिलते हैं? किस तरह से आप ये प्रोजेक्ट को अचीव करते मैम हैं? कुछ ऐसा था मैम, शुरू शुरू में जब मैं कॉलेज से निकला तो मैं कभी कॉलेज टाइम की हम्म। जो जून जुलाई की छुट्टियां होती है मैम, ज्यादा टाइम मैंने दिल्ली में दिया, जहाँ हम्म। आर्टिस्टों के साथ स्टूडियोज में रहा, वहां पे मैंने सीखा, जूनियर एज ए जूनियर आर्टिस्ट रह के वहां हम्म। पे बहुत टाइम उनके पास काम किया। तो उनसे मैम कुछ कॉन्टेक्ट्स मिले, और कुछ मैं अपनी कोशिश रखता हूँ कि कुछ अब नया हो रहा है, जैसे जलंधर स्मार्ट सिटी है मैम, सर ने बताया जैसे पहले कि स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ जलंधर में भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो वेरी गुड। मैम उसी पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं कि, और इसी तरीके से हम जाके डिप्टी कमिश्नर सबसे सर से मिलते हैं, और हम्म। बाकी एसडीएम मैम से मिलते हैं। जैसे अब जलंधर कैंट के जो हमारे वो हेड है इलेक्ट्रिक कर्नल, उनसे मिलते हैं मैम जाके, हम्म। उनके थ्रू हमारे पास मैम काम आता है। और अभी जो जलंधर का स्टेशन है उनके जीएम से मिले हम, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं कि आप हम्म। करोगे तो हमारे पास स्टूडियो में बैठ के मीटिंग वगैरह हुई, तो उससे मैम काम हम्म। शुरू हुआ धीरे धीरे। मैम ऐसा है कि हम अपनी तरफ से भी बहुत अप्रोच करते हैं कि हमको काम मिले, हम ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पे जाके कि कौन सा नया प्रोजेक्ट हो रहा है, कहाँ पे कैसा मीन्स हो रहा आपको यह है कि एक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, हाउ टू कांटेक्ट विद सच पर्सन्स और हाउ टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज, तो ये होना चाहिए आपके उसमें। है। करेक्ट। और कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप अपने जो ऑडियंस है उनको देना चाहेंगे, क्योंकि वो अब उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि हम किस तरह से करें, क्या हमें करना चाहिए, हम आना चाहिए कलाकार की मतलब एक जो अपनी एक दुनिया है वहां पर हम किस तरह से सरवाइव करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके भी हैं, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे गुरप्रीत? मैम यही है कि आप, मैम एक तो सोच है कि जॉब से थोड़ा उठ के भी हमें सोचना चाहिए कि हमें जॉब्स के ऊपर से भी कुछ है। हम्म। हमें सिर्फ जॉब से ही टेंशन रहती है कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम कर हम्म। पाएंगे, हमारे अंदर मैम अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हम कुछ कर बिल्कुल। सकते हैं। जब तक बिल्कुल। मैम वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस हम्म। कॉन्फिडेंस को लेके ही चलना पड़ेगा कि आगे हमें बहुत कुछ देखना है, फील्ड में आके हम्म। कुछ झेलना भी पड़ेगा, कई बार घाटे भी आएंगे, कई बार अच्छा भी मिल जाएगा। हम्म। तो उस हम्म। चीज को सोच के चलेंगे तो अच्छा चलेगा मैम। बाकी यही है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अच्छा काम करो, हम्म। अच्छा सिस्टम से जुड़ो, अच्छे तरीके से क्लाइंट्स बनाओ, अभी जो छुट्टियों का यूज टाइम है उसको अच्छे से यूज करो, आप आर्टिस्टों के साथ मिलो, घूमो, अच्छी अच्छी हम्म। एग्जीबिशन देखो जाके मैम। वही है कि आप काम देखो, फिर ही काम के साथ जुड़ा जाएगा मैम। अभी अपना टाइम खराब ना किया जाए, अपने काम पे पर ध्यान दिया जाए, वही अच्छी बात है हम्म। मैम। हम्म। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट में भी जैसे आप खुद यहाँ के स्टूडेंट रहे हो, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि वो भी इस समय अब कुछ पासिंग आउट बैच है, कुछ जा रहे हैं, डेफिनेटली नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कोई मैसेज वहां पर? यही है कि यूनिवर्सिटी के लिए तो अगर यूनिवर्सिटी के लिए देखा जाए ना, यूनिवर्सिटी के लिए हम, मेरी ज्यादा सोच रहती है कि जूनियर्स को साथ में लेके चला जाए, कि बिल्कुल। वो जूनियर स्टूडेंट है उनको बताया जाए कि कैसे होगा आगे फील्ड में आपको आने के लिए, कैसे मोटिवेशन मिलेगी, आप कैसे जा सकते हो, अब किसी जॉब करनी है किसी ने मैम, उसके लिए कैसे पॉसिबिलिटीज होगी मैम, उसके लिए हम हर रोज हेल्प करते रहते हैं। अब हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम कॉल आती है कि बात करते हैं उनसे कि आपको ये करना चाहिए, वो कैसे जुड़ना चाहिए लोगों के साथ। इसीलिए मैम हम, यही मैसेज है कि आप जुड़ो, सीनियर्स के साथ जुड़ो, और अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ जुड़ो, आप बात करो लोगों से, तभी आपको कुछ आगे मिलेगा मैम। हम्म। वेरी नाइस। तो शांतनु जी, आपका कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए? मैं गुरप्रीत, तुम्हारी बात से बहुत खुश हुआ कि तुमने अपने आप को आगे बढ़ाया, तुम आगे निकले। हम्म। और मैं सारे बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक स्ट्रेट जोन बनाओ, अपने आप को खींचो। जब तक अपने आप को खींचोगे नहीं, ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ तक जा सकते हो। और रही बिल्कुल। बात सर्वाइवल की,
रही बात सर्वाइवल की, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ एज अकेडमिशियन, और रोहिता जी आप इससे एग्री करेंगी कि हमारे टाइम पे स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स ये शब्द बड़े ऊंचे हुआ करते थे। बिल्कुल। आज स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप देने के लिए दुनिया के बड़े बड़े ट्रस्ट और एवेन्यूज बैठे हैं, हमें सिर्फ उनका नाम पता करना, हम्म, दैट लाइक आईसीसीआर, इनलैक्स, खोज, राइट, रतन टाटा ट्रस्ट, ठीक है, हम्म, फिर आपका ये कृष्णा कृति हो गया, इनलैक्स हो गया। हम्म, आप बच्चों गूगल करिए फॉर स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स, जी, आपको पास आउट होने के बाद इतना अच्छा स्कॉलरशिप का बेस मिलेगा कि आपको कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट है, अगर आप डेडिकेटेड है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड बिल- प्राउड ऑफ यू गुरप्रीत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई होप और अच्छा काम करो। थैंक यू। बिल- ओके दलविंदर मैम, मेरी तरफ से इतना ही है। और कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हैं तो प्लीज वी कैन कंटिन्यू विद इट। Thank you so much, Dr. Rohita, Mr. Shantanu, and Mr. Gurpreet. So it was wonderful to like to discuss on ample of innovations and job opportunities in the field of sculpture. So now I would request to the admission nominee, Mr. Rishabh Sharma, to be on the screen. Over to you, sir. Thank you so much, Dharmender ma'am. I hope I'm audible. Yes, you're audible. You can Yes. continue. Right. So, firstly, I would like to thank you for such a wonderful introduction of mine, and further, I would like to extend my regard to Dr. Rohita, our alumni, Gurpreet Singh, and Mr. Shantanu Shastri ji for enlightening us with so much of useful information. Uh, I hope students will be, you know, lucky to witness this. Will be feeling lucky to witness this webinar as they got to know so many things, so much insightful things about fine arts, sculptures. So, without taking much of time, today we will be discussing about accreditations, approvals, and ranking of university and extracurricular activities, and how to apply for fine art program, what all programs we are offering, and the eligibility part and scholarships as well. So I'll give you a glimpse of each and everything. It gives me immense pleasure, and it's a proud moment for us to share with you that LPU is now NAC grade A++ university with 3.68 score on 4-point scale, its highest score in first cycle of accreditation among all government and private universities of India. If we talk about further, we have ICAR, NAC, I have already told you, University Grant Commission, NCTE, and Bar Council of India, Pharmacy Council of India, Council of Architecture, Council of Institute of Town Planners India. So list is long. We are also have Association of Indian Universities membership, International Association of Universities. So you can have a look. If we talk about ranking, LPU has been ranked 23rd among top universities of India, both government and private, by the World University Rankings 2023 by World University with the Real Impact Ranking. We have third by under Atal ranking of institution for innovation and achievement. If we move further, you can see what level of exposure we have at LPU. LPU students created history. 12 out of 13 LPU students won Olympic medals in all three categories: gold, silver, and bronze. Recently, our students won overall trophy in 37th National Inter-University Youth Festival under the aegis of Association of Indian Universities, New Delhi. Uh, whether it is music, fine art, dance, literary, or theater, our students outperformed in all the categories. Uh,
Our students won Maulana Abdul Kalam Azad Sports Trophy 2023. We were first runner-up. It was awarded annually by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. During the 19th Asian Games, our students bring laurel to the country as well as to LPU. You can have a look. Abhishek gold medal in archery, Neeraj Chopra gold medal in javelin throw. So if we talk about the level of exposure as we are discussing, LPU successfully hosted 106th Indian Science Congress, which was au- inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. His Holiness Dalai Lama visited LPU campus. Uh, Two former presidents, one from Afghanistan, Mr. Hamid Karzai, and then President of India, Mr. Pranab Mukherjee, along with our worthy Chancellor, Sir, Dr. Ashok Kumar Mittal, Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Arun Jaitley ji, then Finance Minister, Venkaiah Naidu ji, at convocation, Gohar Gopal Das ji, many Bollywood celebrities also visit LPU campus. You can have a look. MS Dhoni, Sonam Kapoor, Prabhu Deva, Ranveer Kapoor. So LPU also hold a Guinness Book World Book of Record for highest number of people doing Bhangra at a single venue as well. This is our infrastructure. We also have under Shanti Devi Mittal Auditorium, sitting capacity of more than 2,500 people, l- labs, libraries. We also have Uni Mall, and in this mall you can get all your essential needs fulfilled. If you talk about basic needs, gymnasium, bowling area, everything is there. We also have 50 bedded hospital within the campus as well. So we have been awarded as one of the cleanest and safest campus as well, Lush Green campus, night view of lovely professional university. We also have indoor stadium facilities. Badminton is there, shooting range is there, basketball is there, volleyball is there, and then we have squash courts as well. We have Olympic size swimming pool as well. So this is the outside view of our indoor stadium facility. Now let's go live. Will I'll share with you the program that how you can check all these programs. For that, you can note down our website address, that is www.lpu.in. So once you go to lpu.in, there you need to go to admissions. Under admissions, if you are a 12th student, you can click here. Otherwise, you can click here if you are a postgraduate student. After clicking here, you need to select your discipline. Just like this, I have already selected fine art. So from here you can see that we have two programs after 12th. One is BA in Fine Arts, that is a 3-year program and 6 semesters are there. Another one is Bachelors of Fine Arts and 4-year program, 8 semesters are there. I am selecting Bachelors of Fine Arts. So see, the eligibility says you need to pass 12th class to take admission into this particular program. If we talk about the fee structure for this particular program, fees is 50,000 rupees per semester. So you can get scholarships as well. You can get scholarship up to 40% in this program on the basis of LPUness. Otherwise, also you can get scholarship on the basis of your 12th percentage. And if we go further, you can get scholarship on the basis of CUET exam as well. Then we are offering scholarship on the basis of sports, cultural, research, social services and bravery award holders. We are giving scholarships to them. Also, scholarship available in this program for topper of education board. And then we also have financial aid need-based scholarship. We have scholarship for defense personnel and their wards. We have financial aid to orphans, financial aid to person with uh, certain disabilities. So if you want to know about the particular scholarship in which you fall, you just need to click here and just like I clicked. So I have clicked on financial aid need based scholarship. So the page opened up.
From here, you can get all the details. And if you want to apply for this scholarship, then also you can apply from here. You can download the form from here and you can send it to us on this email ID, which is provided over here. So all the details are given on the website. From here, you can check as well thoroughly. And if we talk about the important date, last date to take admission in this program is 25th of April in this current schedule. So I request you all, if you are interested and planning to take admission or pursue your career in fine arts, so you can select LPU. And now next question comes to you is I discussed that you can take you can get scholarship on the basis of LPU Nest. Now, what is LPU Nest? LPU Nest is Lovely Professional Universities National Entrance and Scholarship Test. For few programs, this test serve the purpose of entrance test and for along with scholarship. But for few programs, this test is not mandatory, as it is not mandatory for entrance or but this test serve the purpose of scholarship. So in fine arts, this test serves the purpose of scholarship. If your score is less than 80% in 12th class and you want to get good scholarship up to 40%, then you can appear for this particular test. So fees for this test is 1000 rupees for boy, male applicant, and 500 for female applicant. So now next question comes is how you can take admission or apply for this particular test. You can simply click here on apply now. Otherwise, you can directly note this link, that is admission.lpu.in. Here you need to register yourself. Once you will register, you will be able to take admission or you can apply for LPU Nest exam. Now, further, I would like to inform you that if you want to connect with LPU through WhatsApp, this is the number I am reading out for you, 9852569000, or you can simply click here and you can chat with us. If you want to connect with us to clear your doubt through live video counseling, you can click here. Our counselors are available 9 to 5. You can connect with them and you can get your queries resolved face to face as well. So this is all from my side. You can note our call center number as well, that is 01824 if you want to connect telephonically with us, you can always call us on 01824 So I hope I have shared all the relevant information with the students. So over to you, Dalvinder ma'am. Thank you so much for providing me this opportunity to guide the students. Thank you so much, Mr. Rishabh Sharma. Can we take questions, ma'am? Participants are asking Sure. questions regarding this field. Um, Thanks for giving me chance to address your questions. And now let's start with question number one. What emerging job roles are being created within the field of sculpture due to advancement in materials and techniques? Megha is asking this question. Okay. Over to you, Very good please. question, Megha. In the session, Mr. Shantu Shastri has also discussed about the role, but definitely we can see that art director, clay modeler, set designer, product manager, ceramic designer, these are the specific jobs are there. Or Mr. Shantanu, if you have any other possibility, you can explain because from my side, yes, sir. No, I think you've covered maximum most of it. And to the person who has asked this question, it is really important to identify your forte, what is your strength, and that can be your career also, as for me, right? So identify what's best for you, and if you feel you can be a good director, you can be a good artist, you can be a good modeler, you can be a good teacher, anything that you feel you're good at, that is your career option.
Yes, definitely. But the major jobs are there. That's art director, clay modeler, set designer, product manager, ceramic designer, and designer at any level. And the set designer also. बहुत सारी मूवीज में भी जो है सेट डिजाइनिंग का रोल है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप स्कल्पचर के होंगे तभी आपको मिलेगा. यू शुड बी एन आर्टिस्ट. सबसे पहले एक आर्टिस्ट होना जरूरी है, उसके बाद डेफिनेटली दीज आर द जॉब क्राइटेरिया वेयर वी कैन गो. Thank you so much, ma'am. Yes. Thank you so much, sir. Adil is asking here, in what ways are educational institutions adapting their sculpture programs to prepare students for the evolving job markets in this field? Yes, very, very important and very specific question by the student. Here, I just want to say one thing that, yes, apart from the curriculum, which is suggested by the UGC, we are also arranging many workshops, right? And we are also sending them to the different residencies program where they can learn so many things. And time to time, our students are also going there for the Dokra casting, metal casting, and we can see the clay modeler. So such type of our residency program are also continuing. We have also one concept which is very, very important. This is major and minor. If one student is from sculpture background, he or she can opt a minor course also, minor in the field of photography, applied art, or पेंटिंग also. तो वहां पर जो इनपुट है बच्चे को दिया जाता है ताकि वो लर्न कर सके. इसके अलावा हम लोग बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं आर्ट मार्केटिंग का, क्योंकि आज के टाइम में जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को अपने सेल को, अपने काम को सेल करना नहीं आ रहा है, तो दैट इज वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर देम. तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए ही बहुत से ऐसे सेशंस अरेंज किए हैं वेयर दे कैन लर्न दीज टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, हाउ वी कैन सेल अवर artwork. And the most important thing, the concept of 3D मॉडलिंग. 3D मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कल्पचर, जहाँ पे सिर्फ स्कल्पचर या क्ले के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ गुरप्रीत भी है, तो उनको हमने जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर हियर इन द न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर the students are learning a lot in the field of 3D modeling. And apart from that, we are also arranging program on program orientation, how they can go with their subject. जैसा कि अभी मिस्टर शांतनु जी ने भी बताया कि सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना कैलिबर देखना है कि आप किस में सबसे ज्यादा काम कर सकते हो या जहां पर आपका पैशन है. तो आपका जो एक इनपुट है, हम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड ही बच्चे को एनकरेज करना स्टार्ट करते हैं कि जस्ट थिंक अबाउट द एलिमेंट्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ योर करिकुलम. हम वहां पर आपको हेल्प करें या बच्चे की स्किल को डेवलप करें. तो इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां हम बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं. वी आर आल्सो गिविंग द एक्स्ट्रा इनपुट रिगार्डिंग द एग्जीबिशंस. इंडिविजुअल एग्जीबिशंस हम अरेंज कर रहे हैं, साथ साथ उनको हम इनपुट दे रहे हैं कि कैसे वो स्कॉलरशिप के लिए या नई टेक्नोलॉजी के इमर्जन के साथ कर सकते हैं. इसके साथ ही हमारे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इनोवेटिव प्रोजेक्ट में है. इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो कि एक अपने आप में डिफरेंट कल्चर को हो. मेरे साथ गुरप्रीत है. गुरप्रीत इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब मैं इनोवेटिव प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये फील्ड पूरा ओपन है कि आपने अपने फील्ड के साथ कैसे किसी नई चीज को ऐड करके नई क्रिएटिविटी स्टार्ट करनी है. सो वी आर गिविंग द एक्सपोजर ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स. आई थिंक मेरा जो आंसर है सेटिस्फाई कर रहा होगा स्टूडेंट्स को. और मिस्टर शांतनु और गुरप्रीत जी, आप कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम सर. इससे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, दैट प्राइवेट आर्ट कलेक्टर्स इन इंडिया have established art foundations like Uttarait Art Foundation है, जो बड़ौदा में है, मैयर में आर्ट इकोल करके है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो बच्चे का प्रश्न था कि आजकल यूनिवर्सिटीज और ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई थिंक बिल्कुल ये आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करनी है विद द ओपन वर्ल्ड. And you have to choose your connections, you have to identify your connections, लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना पड़ता है. Universities are a beacon of lights. They show you the way, but उनकी एक लिमिटेशन होती है कि 4 साल बैचलर्स तक और 2 साल मास्टर्स तक वो आपको बीकन बनते हैं. उसके बाद it's your step. So I think यहाँ पे सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व होता है वो आपका होता है कि आप इन आर्ट
trainer institutes, art galleries, art buyers, इन लोग को आइडेंटिफाई करें और अपनी पॉसिबिलिटीज को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको आउटरीच करें. एंड देयर आर द विंग्स ऑफ imagination. They are the wings of your endless flight into the world of art. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. I hope all the participants got the answers from our experts. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding your admissions. If anyone want to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, and can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a nice day. Thank you. Have a nice